اپوزیشن NRO مانگ رہی ہے جو بالکل نہیں دیں گے، کسی کی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کا پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں دو ٹوک اعلان، کہا PTI اپنے منشور سے بالکل بھی پیچھے نہیں ہٹے گی۔ FATF سے متعلق قانون سازی ضروری ہے، اپوزیشن بلز کی منظوری میں ساتھ نہ بھی دیتی تو بھی مشترکہ اجلاس میں منظور کروا لیتے۔ میں پلیڈ کر رہا ہے کہ کلبھوشن یادو کو وکیل دو، تو جو ہمارا کشمیر کا سفیر بننا تھا، آج وہ کلبھوشن کا وکیل ہے اور ہمیں NRO کہتے۔ کشمیر کا سفیر کلبھوشن کا وکیل بن گیا اور ہمیں NRO کہتا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا وزیر اعظم کو جواب، کہا FATF کے نام پر آمرانہ اختیارات حاصل کرنے کی کوشش کی گئی، کسی کو بھی 6 ماہ تک مسنگ پرسن بنانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ FATF اور نیب قوانین کو NRO کے ساتھ نفی کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم کے معاونین پر آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس بنتا ہے۔ اس بل کا FATF سے کیا تعلق تھا تو بڑے کھسیانے ہوئے، ہمیں یہ بتا دیں یہ بل بنانے والا کون ہے؟ وزیر قانون نے بنایا ہے، سیکرٹری قانون نے بنایا ہے؟ اس کا جواب آج تک نہیں مل سکا۔ اتنا خوفناک بل میں نے کہا کہ کم از کم میں نے اپنے 32 سال کی پارلیمانی زندگی میں نہیں دیکھا۔ FATF بلز کا نیب بل سے کوئی تعلق نہیں، حکومت اپنا نیب اپنے پاس رکھے، ہم نے کوئی NRO نہیں مانگا۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی گفتگو، کہا FATF بل کس نے لکھا، اسے کون لایا، حکومت جواب نہیں دے سکی، میٹنگ کے اندر کی باتیں باہر لائی گئیں، اگر وزراء اتنا جھوٹ اور انحراف کریں گے تو ملک کا کیا ہوگا۔ نیب قوانین پر اپوزیشن کی تجاویز ردی کی ٹوکری میں جائیں گے۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز کی پریس کانفرنس، کہا ایسا نظام لانا چاہتے ہیں جہاں ہر کوئی جواب دہ ہو۔ بلاول کو کرپشن کی جائیداد بچانے کے لیے سیاست میں لایا گیا۔ عمران خان کو عدالت نے صادق اور امین قرار دیا۔ United Nations Security Council Amendment Bill 2020 be passed. All those in favor say aye. All those say no. I think ayes have it. The motion is drafted and consecutive bill is passed. سینٹ کے بعد قومی اسمبلی سے بھی انسداد دہشت گردی ترمیمی بل منظور۔ اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل ترمیمی بل بھی ایوان سے پاس ہو گیا۔ چیئرمین سینٹ، وزیر خارجہ اور دیگر کی مبارکباد۔ شاہ محمود قریشی بولے، ثابت ہو گیا ملکی مفادات کو ذاتی مفاد پر ترجیح نہیں، سب نے مل کر بھارت کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا۔ معاملے خصوصی دوہری شہریت پر نااہل نہیں ہو سکتا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا۔ وزیر اعظم کے معاملے خصوصی کو ہٹانے کی درخواست مسترد، فیصلے میں لکھا دوہری شہریت والا بھی پاکستانی ہے، ان کی حب الوطنی پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر اعظم عوام کو جواب دیں، اکیلی ریاست کا نظام نہیں چلا سکتے۔ کرپٹ عناصر نے ذاتی تجوریاں بھری اور ملک کو کنگال کیا، وزیر اعلیٰ پنجاب کا بیان، کہا کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کے مثبت نتائج سامنے آئے، کرپشن میں کمی اور شفافیت میں اضافہ موجودہ حکومت کا کریڈٹ ہے، بزدار کے برساتی پانی کو ذخیرہ کرنے کے منصوبے کو دیگر شہروں میں بھی بڑھانے کی ہدایت۔ کراچی میں سول انتظامیہ کی مدد کے لیے فوج طلب کر لی گئی، ترجمان پاک فوج کا بیان، کہا فوج کو اربن فلڈنگ کی صورتحال پر طلب کیا گیا، پاک فوج اربن فلڈنگ کی صورتحال میں سول انتظامیہ کی مدد کرے گی۔ جو وزیر اعظم نے ایکشن کیا ہے، جو انہوں نے سمری سائن کی ہے آج، وہ بڑی امپورٹنٹ سمری ہے، جس کے تحت کراچی کی صفائی کا کام فوری طور سے شروع ہو جائے گا، فوج اس کو سپروائز کرے گی، FWO ساتھ آئی ہے، NDMA یہاں پر ساتھ موجود ہے۔ کراچی میں صفائی کی نگرانی اب فوج کرے گی، وزیر اعظم عمران خان نے NDMA کو ٹاسک دے دیا۔ گورنر سندھ کی پریس کانفرنس، کہا کراچی کو دوبارہ روشنیوں کا شہر بنائیں گے۔ میئر کراچی وسیم اختر بولے، شہر کے مسائل کا حل آئین کے آرٹیکل 140A میں چھپا ہے، انہی اختیارات کے ساتھ دوبارہ الیکشن کرانا ہے تو نہ کرائیں۔ پاک فوج ہمارا مایا ناز ادارہ ہے، ہمارے لیے انتہائی قابل عزت و احترام ہے۔ اگر پرائم منسٹر صاحب نے NDMA سے کہا ہے تو ہم ویلکم کرتے ہیں۔
कराची में सफाई के लिए फौज को खुश आमदीद कहते हैं वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सफाई में नाकामी पर वजीर आजम मेयर कराची से इस्तीफा ले। नालों की सफाई के लिए सिंध हुकूमत ने KMC को करोड़ों रुपए दिए। वर्ल्ड बैंक से कोई कर्ज नहीं लिया गया। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत पर अदालत और हुकूमत का अपना अपना मौक़िफ़ था। 70 साल में पहली बार पाकिस्तान दुरुस्त सिमत में जा रहा है। सदर मुमलिकत की रूबरू में गुफ्तगू। कहा चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद का ताल्लुक कराची से है, उन्हें शहर की बहुत फिक्र है। प्रोग्राम आज 10 बजे नशर किया जाएगा। भारतीय जासूस कुलभूषण केस की समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच तश्कील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर समाअत 3 अगस्त को होगी। दरख्वास्त में वफाक को वज़रिए सेक्रेटरी दिफा और जज एडवोकेट जनरल ब्रांच GHQ को फरीक बनाया गया है। इस्लामाबाद की एहतिसाब अदालत में तोशाखाना रेफरेंस की समाअत। नैब का आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की गाड़ियां कब्जे में लेने का फैसला। नैब ने साबिक सदर और साबिक वजीर आजम की गाड़ियों की मिल्कियत मुंजमद कर दी। एहतिसाब अदालत ने तफ्तीशी अफसर से तमाम रिकॉर्ड मांग लिया। साबिक सदर आसिफ जरदारी के खिलाफ वाटर सप्लाई ठेका करप्शन का केस। साबिक सदर ने नैब रेफरेंस में फर्द जुर्म को चैलेंज कर दिया, बरी करने की दरख्वास्त कर दी। एहतिसाब अदालत ने नैब को नोटिस जारी कर दिया। मुसलमान की निशानी है, हकदारों का हक अदा करना चाहिए। आज़मीन मैदान अरफात से मुज़दलिफा के लिए रवाना, रात खुले आसमान तले बसर करेंगे। वक्त कम मुकाबला सख्त। मवेशी मंडियों में बला कर शहरियों को कुर्बानी के लिए मनपसंद जानवरों की तलाश। व्यापारियों को साल की मेहनत के अच्छे दाम मिलने की आस। जो जानवर ले आए वो खूब नाज नखरे उठा रहे हैं। गोलू, बबलू और शानू को खूब घुमा रहे हैं। किया गया है। फौज अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल में सिविल इंतजामिया को एआनत फराहम करेगी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे नवीद अकबर से। जी नवीद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची में बारिशों से पैदा शुदा सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए सिविल इंतजामिया की मदद के लिए पाक आर्मी को तलब कर लिया गया है। इस हवाले से ISPR ने एक मुख्तर बयान जारी किया है, जबकि दूसरी तरफ NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की दरखास्त पर कैबिनेट डिवीजन ने एक समरी मुंग की है। ये समरी तमाम कैबिनेट मेंबर्स को भेजी गई है ताकि बाई सर्कुलेशन इसकी मंजूरी ली जाए, जिसके तहत फौज को सिविल इंतजामिया की मदद के लिए और NDMA की मदद के लिए कराची में तैनात किया जा रहा है, ताकि कराची में जो गुज़िश्ता दिनों सैलाब की वजह से, बारिशों के सैलाब की वजह से जो गंदगी फैली है और जो उसकी वजह से नाले उबल पड़े और शहरियों को जिस तंगी का सामना करना पड़ रहा है उसे निपटा जा सके। याद रहे कि वज़ीर इमरान खान ने गुज़िश्ता रात एक ट्वीट भी किया था इस हवाले से, जिसमें उन्होंने NDMA के चेयरमैन को हिदायत की थी कि वो फौरी तौर पर कराची पहुंचे और NDMA जो है कराची की सूरत हाल को काबू में करे। और कराची में जिस तरह से बारिशों का सैलाबी पानी जो है वो शहर में फैल गया है, तो उससे तो वबाई अमराज भी पैदा हो सकते हैं, तो उसको फौरी तौर पर जो है तो साफ किया जा सके। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक और ट्वीट भी किया था, जिसमें उन्होंने पाक आर्मी से भी कहा था कि वो मुतलका जो NDMA हुक्काम है उनकी मदद करे, सिविल इंतजामिया की मदद करे, ताकि शहरी है कराची की उनकी मुश्किलात पर काबू पाया जा सके और कराची को जो है बिल्कुल साफ सुथरा किया जा सके। जी ठीक है। कराची में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल के पेश नजर मदद के लिए फौज को तलब किया गया है। नवीद अकबर आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। विफाक ने कराची ड्रेनेज सिस्टम ठीक करने का टास्क फौज को सौंप दिया। शहर में सफाई सुथराई की निगरानी अब पाक फौज करेगी। वजीर आजम ने समरी पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं बल्दियाती इदारे हालिया बारिशों में नाकाम हो गए। विफाक हर सूरत कराची को ठीक करेगा, जबकि मेयर कराची वसीम अख्तर ने कराची के तमाम मसाइल का हल आर्टिकल 140A को करार दे दिया। कराची का कचरा अब फौज साफ करेगी। वजीर आजम ने फौज को टास्क दे दिया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना था कि वजीर आजम को कराची की मौजूदा सूरत हाल पर काफी तशवीश है। वजीर आजम ने कराची में ड्रेनेज सिस्टम ठीक करने के लिए NDMA और FWO को टास्क दे दिया है। जो वजीर आजम ने एक्शन किया है, जो उन्होंने समरी साइन की है आज, वो बड़ी इंपॉर्टेंट समरी है, जिसके तहत कराची की सफाई का काम
फौरी तौर से शुरू हो जाएगा। फौज उसको सुपरवाइज करेगी। FWO 7 आई है, NDMA यहाँ पर 7 मौजूद है। गवर्नर सिंध ने इंकिशाफ किया कि 162 अरब रुपए में से एक धेला भी कराची पर खर्च नहीं हुआ। जिस तरह कराची को चलाया जा रहा है, इस तरह ये शहर नहीं चल सकता। कभी कहा जाता है कि फेडरल वफाक ने एक धेले का काम कराची में नहीं किया 162 अरब रुपए में से, और दूसरे ही सांस में कहा जाता है कि वफाक ने जो काम तरक्याती काम शुरू हुए उसकी वजह से कराची डूब रहा है। तो लिहाजा ये ब्लेम गेम है जो सारा चलता है। मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा कि शहर के तमाम मसाइल का हल आइन के आर्टिकल 140A के निफाज में है। इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने कराए, आर्टिकल 140A की जो इंटरप्रिटेशन है वो इन लेटर एंड स्पिरिट ना आइन में है, उसको क्लेरिफाई करना होगा और इम्प्लीमेंट कराना होगा। अगर यही इख्तियारात और वसाइल अगले इलेक्शन के बाद भी इलेक्टेड लोगों को दिए जाएंगे तो इलेक्शन ना कराए जाए तो बेहतर है। रहनुमाओं का कहना था कि बंद नालों को खोलने का काम फौरी शुरू किया जाएगा। सफाई के काम में कोई उज़र नहीं सुना जाएगा। कराची में सफाई के लिए फौज को खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह के डिजिटलाइज रिकवरी सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अगर नाकामी पर इस्तीफा देना है तो शुरुआत वज़ीर आज़म से होनी चाहिए। सफाई के मामले पर इस्तीफा मेयर कराची का भी बनता है। माजी में भी 80 करोड़ रुपए दिए, अब भी सिंध हुकूमत पैसे दे रही है। ट्रेंड आ जाए मुल्क में तो मेरा तो सबसे पहले इस्तीफा बनता है, लेकिन मुझसे थोड़ा सा पहले प्राइम मिनिस्टर साहब का बनता है कि जब उन्होंने आटे की कीमत पर काबू नहीं पाया, चीनी की कीमत पर काबू नहीं पाया, अगर ऊपर से शुरू हो तो हम हाजिर हैं। नीचे से इस्तीफा मांगना है तो मेयर से मांगो। ये जो एक परसेप्शन दिया जा रहा है बहुत सारे हमारे दोस्तों की तरफ से, जी अरबों रुपए जो है वर्ल्ड बैंक ने दे दिए और वो पता नहीं कहाँ गए। मुख्तलिफ सालों में हमने 80-90 करोड़ रुपया दिया है KMC को नालों की सफाई के लिए। पाक फौज हमारा माया नाज इदारा है, हमारे लिए इंतहाई काबिल इज्जत व एहतराम है। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने NDMA से कहा है तो हम वेलकम करते हैं। और अब बात वजीर आजम के अपोजिशन को दिए गए वाज़े और दो टोक पैगाम की। पार्लिमानी पार्टी और इत्तेहादियों के साथ होने वाले इजलास में वजीर आजम इमरान खान ने अपोजिशन को टफ टाइम देने का टास्क दे दिया। कहा कि अपोजिशन की पूरी जिद्दोजहद इस बात पर है कि केसेस खत्म हो जाए, लेकिन हुकूमत अपोजिशन की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगी। अपोजिशन बिल्स की मंजूरी में साथ ना देती तो भी मुश्तरका इजलास से बिल्स मंजूर करवा लेते। वजीर आजम ने एक मरतबा फिर दोहराया कि अपोजिशन को किसी सूरत एनआरओ नहीं देंगे। अपोजिशन की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। मुल्की मुफाद की कानून साजी के बदले NRO नहीं दे सकते। वजीर आजम इमरान खान का दो टोक पैगाम। पार्लिमानी पार्टी और इत्तेहादियों का इजलास हुआ जिसमें अपोजिशन को टफ टाइम देने की ठान ली। वजीर आजम ने इजलास में कहा कि अपोजिशन बिल्स की मंजूरी में साथ ना भी देती तो ये बिल्स मुश्तरका इजलास में मंजूर करवा लेते। अपोजिशन NRO मांगती है जो किसी सूरत